जिस वादी के आबशारों में हो मकीं कौसरों की सदाएं, जिस वादी के आबशारों में हो मकीं कौसरों की सदाएं, उन्हीं नवाओं में है जफाकश लोगों की रिदाएं। हो बसंत में हर सू जहां बेहिश्त की महक, गर्मा में सयाहों के कहकहों की निदाएं। फिरदौस जिस दश्त की बुलंदियों पे है इखलास का परचम, फिरदौस जिस दश्त की बुलंदियों पे है इखलास का परचम, उन्हीं मुनब्बल के कौसारों पे है आंसुओं की धाराएं। अस्सलामु अलैकुम। In the vale whose waterfalls resound with the echoes of celestial fountains, there abide the indomitable sons of toil. With the advent of spring, every breeze carries the fragrance of Eden, while in summer the air is enlivened by the joyous laughter of travelers. Upon the lofty heights of that earthly heaven flies the banner of sincerity, and across the mountains of Munabal shimmer rivulets that resemble streams of tears. जी हाँ, वादी मुनब्बल की हसी वादियों में टहलना और बिलोरी हवाओं के थपेड़ों में रक्स करना एक इंसान को हर एक अंगुरेशे में एक नई ही रूह फूंकता है। शायर अपने ही ख्यालों में मुदगम नई गजलें सुपुर्द किरदास करने लगता है। और हाँ, आम इंसान अपने सारे आशोब को बुला के हंसी दिलकशी को तक के कुदरत का सौदाई होने लगता है। जी हाँ, कुदरत के इस तोहफे को किसी भी छेड़छाड़ की जरूरत नहीं। ताहम इन हंसी वादियों तक रसाई सिर्फ और सिर्फ सड़क बनने से ही मुमकिन है। सरवाली से मूरी, मूरी से खड़ी आबशार और तो और खड़ी से चकपत तक कम से कम एक सड़क की फौरी जरूरत है, ताकि दूर दूर से आने वाले सैलानियों की रसाई आबशारों की अमृतवादी चकपत तक हो सके। और जगह जगह लेवेटरी ब्लॉक्स तामीर करने अशद जरूरी हैं, ताहम सैलानी सही मौसम और सही दिन का ही इंतखाब करके इस वादी की ओर आने का प्रोग्राम बनाया करें। खैर, छोड़ते हैं हम आपको मुनब्बल की हंसी वादियों की हंसी झांकियों और तो और बच्चों के तासुरात के साथ।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you. Once again, we have come across this beautiful valley, which is known as Monabal Vale, and here we are standing in the lush green fields of Sarwali, which is located here at Monabal. In these lush green forests, we are standing, and such a calm and tranquil place here. And you all know that this is the newly discovered tourist destination and developing tourist destination rather. All over India people are coming here. Just in the previous video, my guest had come here, and I played a bite of him, the guest which had come here from Ludhiana, Punjab. His name was Sunny Sethi, and Sunny Sethi also praised this beautiful vale here. And we are standing in these lush green fields here, and what a beautiful charm and scenery is here all around. And you know that here are the shrubs which are known as kilmishmar in Kashmiri language, and in Gojri language, in Guch, sir. Guch. Yeah, these are guchs which you are seeing all around. We call them as kilmishmar. So in this beautiful and scenic charm, we are standing here, and as far as this place is concerned, this is 3 kilometers away from Sarwali ground, where you saw earlier there were dokas of the tribal people which are located here. And from the Sarwali ground, we have crossed these mountain ranges here. These are the scenic charms of this Monabal Vale here, and this is the developing tourist destination. And since the tourists are not acquainted well about this area, and since people are nowadays coming here and exploring this beautiful vale, and we invite all the tourists to come here and explore this beautiful vale and take the scenic charms along with them. They should come here and spend some leisure time here, and they should come here and explore this beautiful valley here. And as you all know that this is the developing tourist destination where we are standing here since our institution, namely Tribal Government Middle School Lahikut, has come here. All the students of our institution have come here, and our students are along with us on trekking. And so you all know they are exploring this beautiful vale here. We are some 2-3 kilometers away from our institution, and here is our student Zamir Ahmed Badana. Zamir Ahmed Badana will tell us about this beautiful vale since you are the indigenous, since you are the native of this area, and you know regarding this area very well. You are acquainted fully. What is your take on it? Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम. सर, इस वक्त हम सरवाली के थोड़ा पीछे सर मूरी में वाक़ हैं इस वक्त सर हम. तो सर आपने बताया, इसके बारे में आप बताइए. आप यहीं पे रहते हैं, क्या कुछ कैसी इसमें क्या खास चीज़ है सरवाली में, खड़ी में, गिंगनाड़ में? सर वैसे तो आप जानते हैं सर, यहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वाटरफॉल है यहाँ पर. सरुआ वाली बहुत अच्छा मैदान है. गिंगनाड़ 1 है, गिंगनाड़ 2. सर जो सरुआ वो गिंगनाड़ खड़ी जो वाटरफॉल है सर, वो वाटरफॉल सर नेचुरली क्रिएट हुआ है सर. वो कोई मैन मेड नहीं है. बहुत अच्छा वाटरफॉल है, बहुत अच्छा व्यू है. यहाँ से कितनी दूरी पर है जो वाटरफॉल है? लगभग सर आधा किलोमीटर यहाँ से दूर पे खड़ी है वाक़ है वो वाटरफॉल. ठीक है, जहाँ इस ग्राउंड में हम खड़े हैं इसको मुरली कहते हैं. यस सर, मूरी सर. मूरी, सॉरी, मूरी कहते हैं. तो ये जो लश ग्रीन यहाँ पे देवदार की ट्रीज है, और हर एक जो हमारा पर्यटक यहाँ पे आता है हिंदुस्तान से या बाहर से या कश्मीर से आते हैं या लोकेलिटी से आते हैं यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, इस अल्लाह ताला के जो इस करिश्मे, इस नज़ारे को देखने के लिए, और किस तरह सुकून और मैसर होता है यहाँ पे कुछ पल बिताने में, कितना सुकून आता है. तो आप क्या चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, और उन टूरिस्ट के लिए क्या सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए? इस इलाके में आप क्या खामियां देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट क्या इक़दाम उठाए जो इसको डेवलप करने के लिए, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि सर सरुआ वाली से ऊपर भी सर सड़क होनी चाहिए खड़ी तक सर, और खड़ी में जो हरदिखारी नाला है सर, उससे ब्रिज होना चाहिए सर, जिससे जो आप खड़ी का जो नाला है वहाँ हरदखारी नाला है, और उस नाले के ऊपर एक ब्रिज चाहते हैं आप? यस सर, ब्रिज चाहते हैं जिससे आसानी और टूरिस्ट को पुल पार करने में सर.
और वो रास्ता जो है, अगर हम पुल गवर्नमेंट इसके लिए सोचे तो वो सड़क कहाँ जाएगी फिर ऊपर? सर वो सड़क फिर ऊपर भी जा सकती है, बहुत अच्छी प्लेसेस हैं ऊपर भी किसकी सर, जगह पे जा जैसे सकती है? चकापात 1 है, चकपात 2 है सर, गिंगीनाड़ है ऊपर, वहाँ पे भी बहके हैं, रंगवाड़ है ऊपर, रंगवाड़, यस अच्छा, सर, ठीक बहुत सी अच्छी बैक है सर, वहाँ पे भी बहुत टूरिस्ट प्लेस है। यानी इसका मतलब है यहाँ से एक यहाँ तो हमारे यहाँ सरुवाली तक रोड मेटल रोड है, Yes, गवर्नमेंट sir, ने ये yes, सब कुछ अच्छी किया road है, है, ये yes, बहुत खुशी की बात है। दूसरे ये कि आप इसको फेज 2 में लेना चाहते हैं कि Yes, sir. यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ऊपर चकपत बी के लिए, चकपत ए के Yes, लिए sir. रोड चाहते हैं यस सर, और एक पुल चाहते और हैं, ब्रिज चाहती है, ठीक है, ताकि टूरिस्ट का जो है यातायात बढ़े और Yes, यहाँ sir. पे लोग आ जाए, तो ठीक बात है। तो और क्या चाहते हैं इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, आप क्या चाहते हैं? सर और थोड़ी पार्किंग चाहते हैं सर, पार्क दें गवर्नमेंट थोड़ी अपनी तरफ से। पार्क है, अच्छा, Yes, sir. ठीक है, यानी बैठने का इंतजाम, Yes, टूरिस्ट sir. के लिए Yes, बैठने sir. का इंतजाम, पानी तो है माशाल्लाह, सब Yes, sir. कुछ यहाँ पानी पे यहाँ है, पर- कुदरती नज़ारे भी हैं, देवदार के खूबसूरत जो है पेड़ भी यहाँ लहलाते हैं, हर साथ यहाँ पे सुकून मैसर होता है। किस तरह से खुशबू, फूलों से आने वाली महक अपने आप अपने हर एक आने वाले को जो अपनी ओर आकर्षित करती है, बहुत खूबसूरत जगह है। आपने हमारे साथ इस इलाके के बारे में बात की, मोहम्मद ज़मीर बड़ाना साहब, और क्या चाहते हैं आप, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? सर और यहाँ पर व्यूवर्स को यही बोलूंगा, यहाँ पर आओ, एक्सप्लोर करो जगह को, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ताज़ा हवा है सर, बिल्कुल सुकून जगह है ये सर, बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पे आएं और एक्सप्लोर करें जगह को, ठीक है। मजे उठाएं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने उस्तातिज़ा किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भेजा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे Thank you, मोहम्मद sir. ज़मीर बड़ाना, जो कि वन ऑफ द जीनियस गाय हमारे इंस्टीट्यूशन का है। आपका हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। We have come across this beautiful vale here. This is known as Sarwali. These are the dokas of Sarwali Bahak, and as you already know, you are acquainted with the fact that the people of Monabal and this Lahikut, Shilthara, Bandi, Utrusa come here with their flocks of sheep or cattle, and so that in the summer season they graze their cattle here, and you know that in the lower regions there is scanty, there is shortfall of grasslands, and when they reach fields they find these grasslands here in this beautiful vale. And आप सभी जानते हैं कि हम इस वक्त सरुवाली बहक में हैं। ये वही निवासी हैं, मोनाबल के लोग हैं, और यहाँ पे आते हैं और अपने माल मवेशी लेकर इस इलाके में इन गर्मी के आयाम में यहाँ पे आते हैं, 2-4 महीने 5 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो हमारी यहाँ पे सईद सोलिहा जो है हमारे स्कूल की तालिबा है, जो कि गवर्नमेंट ट्राइबल मिडिल स्कूल लहीकूट में ज़ेरी तालीम है। मैं इनसे हम कलाम हूँ जी। आपका नाम, अपना परिचय कराइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वालेकुम जो सलाम। हमारा वीडियो देख रहे हैं। जी मेरा नाम है सैयद सोलिहा। जी मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लहीकूट की एक तालिब इल्म हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और आज हम यहाँ पे आए हैं सरुवाली जी ट्रिप पर, अपनी स्कूल के साथ आए हैं ट्रैकिंग पर। जी कल हम आए थे यहाँ पे मिडिल क्लासेस, आज आए हैं प्राइमरी क्लासेस। जी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ठीक है, बहुत साफ है, यहाँ पे कोई पॉलीथीन वगैरह नहीं है। और हम यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स गेम्स को साथ लाए हैं, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल वगैरह। और सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको सईद सोलिहा? आपको क्या लगता है इस इलाके में यहाँ पे आके आपको कैसा जो है तजुर्बा हुआ, क्या फील महसूस हुआ यहाँ पे आके आपको? इस वातावरण के बारे में, इस माहौल के बारे में आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? ये बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है और दिल खुश हो रहा है ये देखकर कि यहाँ का माहौल बहुत साफ है जी। और यहाँ पे कोई मतलब कोई आलूगी यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे हम किसी को पॉलीथीन डालने देते हैं। और यहाँ का जो है, जो यहाँ के लोग हैं वो भी यहाँ के माहौल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यू आती है। आपको क्या चाहिए इस इलाके में होना चाहिए, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए इस सरुवाली, जो कि आपको पता है कि 2 किलोमीटर NTPIC मोनाबल जो है, मैन चौक मोनाबल जो है, वहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर आए हम इस सरुवाली बहक में। आपको क्या खामियां लगती हैं, क्या कमियां हैं इस वक्त जो सरकार की जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाती है?
आपका क्या संदेश रहेगा, आपका क्या पैगाम रहेगा उन लोग गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार जो है, हमारे हुकामी बाला जो है, उन तक आपकी क्या मशवरा रहेगा, क्या सुझाव रहेगा इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए लिहाज से क्या चाहिए? इस इलाके की डेवलपमेंट के लिहाज से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़े से मतलब बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ गेम्स, मतलब कुछ पार्क बनाई जाए, पार्क, अच्छा, यहाँ पे पॉलिथीन बैन की जाए, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छे टूरिस्ट आने चाहिए, यहाँ पे रोड आना चाहिए। रोड तो है वैसे, यहाँ तो मेटल रोड है, यहाँ तक तो है, लेकिन इसके ऊपर हम गए हैं, कल आपने देखा कि चकपत ए में हम गए हैं, लेकिन वहाँ रोड नहीं है। आप चाहते हैं कि सरुवाली से ऊपर रोड होना चाहिए, जो पहले भी एक बच्चे ने हमसे ये जो है ये मुतालबा रखा था हुकाम के सामने। तो हम और क्या मैसेज रहेगी सामीन के लिए, आपकी क्या जो है आखिरी पैगाम रहेगा? मेरा आखिरी पैगाम यही रहेगा कि सारे मतलब लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना मतलब रिफ्रेश करें, अपना आप रिफ्रेश करें। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आपका मतलब माइंड भी फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे व्यू करें, और यहाँ की मैं आपसे गुजारिश करती हूँ यहाँ पर पॉलिथीन, गंदगी वगैरह ये मत डाला करें, ठीक है। अच्छा, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लक्स हो टूरिस्ट का, जहाँ हमारी आवाज जाती है वो यहाँ पे आए और जोक दर जोक आए और यहाँ पे अब इस कुदरती जो है, इस कुदरती माहौल से जो है लुत्फानंदोज हो जाएं? आप चाहते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ आए सैर करने के लिए? यस सर, मैं उन सब लोगों से गुजारिश कर रही हूँ जो यहाँ नहीं आए हैं, उनसे भी कर रही हूँ, जो आए हैं उनसे भी कर रही हूँ, और यहाँ पे इससे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी लाएं, और यहाँ से जो बेचारे लोग हैं इनके लिए भी कुछ करें, और जो मतलब लोग आते हैं उन जगहों पर जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह हो, वहाँ पर नहीं आते हैं जहाँ पर उनका दिल खुश। नहीं, यहाँ तो नेचुरल सीनिक ब्यूटी है, यहाँ पे उस हिसाब से जो है निर्माण कार्य की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हमें इस नेचुरल ब्यूटी को और सजाने के लिए थोड़ी पार्क्स होनी चाहिए। जैसे हमारे पास साफ शफाफ पानी यहाँ है, नेचुरल जो है ब्यूटी है, आलूदगी नहीं है। हाँ, ये आपका सुझाव अच्छा जा रहा है कि यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स को जो है, पॉलीथीन जो है जो खा रहे हैं अपने साथ ले आ रहे हैं, दुकान की चीजें वस्तुएं लाते हैं, और यहाँ पे जो पॉलीथीन को जो है हम एक साथ कर सकें। सिविलाइज्ड कौम के जो है एक सिविलाइज्ड इंसान होने के नाते हमें ये चाहिए कि जो ये कागज है, मोमजाम है, इनको एक जगह जमा करके हम जला सकते हैं। ये आपका सुझाव जा रहा है, लेकिन आपका जो सुझाव जो है रोड के बारे में, और इसके अलावा यहाँ पे जो है टॉयलेट्स का इंतजाम नहीं है, ये आप चाहते हैं? यस सर, यहाँ पे टॉयलेट्स होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स, और रोड जाना चाहिए। यहाँ बहुत जो इसके ऊपर भी एक बड़ा मैदान है, उसको हम बोलते हैं चकपत। अच्छा, इसके नीचे भी है वाटरफॉल्स, वहाँ तक रोड जाना चाहिए ताकि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आए और अपना दिल खुश करें। मेरा सुझाव यही है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी पार्क्स बने, अच्छे अच्छे फूल लगाए यहाँ से, और इसको हमारी गुजारिश है कि इस जगह को हमेशा के लिए साफ रखें ताकि हम भी इस जगह को एंजॉय कर सके, और वो लोग भी जो कभी नहीं आए वो भी इस जगह को एंजॉय कर सके, अपना दिल खुश कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप अपना परिचय कराइए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उल्फत हमीद है, मैं 7वीं क्लास की तालिबे इल्म हूँ। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लईकोट में पढ़ती हूँ। आज हम ट्रैकिंग पर आए सरुवाली। ये बहुत ही सेहत अफजा मुकाम है। मैं इस सेहत अफजा मुकाम के बारे में हमने बहुत सुना था, इसलिए हम आए। हमने सोचा यहाँ की जगह को एंजॉय करें। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय। इससे ऊपर बहुत अच्छी, जैसे जन्नत है, इससे ऊपर बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जिससे चकपत है, खड़ी वाटरफॉल है, वो बहुत अच्छी जगह है। गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ तक रोड लाई। अब हम उनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ से ऊपर भी रोड होनी चाहिए ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो इस जगह का जायजा लेकर ऊपर भी जाए। यहाँ पर कैंपिंग होनी चाहिए, यहाँ पर होटल्स होने चाहिए, दुकान होने चाहिए, और जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होनी चाहिए। डस्टबिन होने चाहिए, पॉलीथीन पर बैन होना चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए। जी, ऊपर जो है बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर टूरिस्ट से मैं गुजारिश करती हूँ कि वहाँ पर भी जाएं, उस जगह का जायजा भी लें ताकि आपको बहुत ही नेचुरली पीस मिल जाए। वहाँ पर बहुत ही अमन है, जैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीस है। यहाँ के लोग जो आते हैं यहाँ पर डॉग में, ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से टूरिस्ट भी आते हैं। स्कूल्स आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। अब हम चाहते हैं कि इससे ऊपर भी जाएं ताकि वहाँ रोड होनी चाहिए।
जो बाहर से आते हैं, बाहर से जैसे कश्मीर से भी बाहर आए, जम्मू से आए, वो भी और ऊपर जाएं। इस जगह का जायजा बहुत ज़्यादा। उल्फत हमीद, आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे जो बहुत सी मांगे रखी हैं आपने हुकाम के सामने, बहुत अच्छी बात है। ये सीधी सी बात है। आपके जो विचार हैं बहुत बुलंद है। आप तो ज़हीन लड़की हो, आपको इस बारे में जो है, इस इलाके के बारे में विस्तृत जानकारी है, अच्छी तरह से जानकारी आप जानते हैं, आप यहीं की हैं। और आप क्या चाहते हैं टूरिस्ट से, क्या पैगाम रहेगा? टूरिस्ट से मेरा यही पैगाम रहेगा कि इस जगह को विजिट करें और इससे ऊपर भी जाएं। ऊपर बहुत अच्छा है, जैसे चकपत है वहाँ का अगर आप जायजा लेंगे तो बिल्कुल खूब बंगस जैसा है, वो बहुत अच्छा है वो जगह। वहाँ पर टॉयलेट्स का इंतजाम होना चाहिए। उससे ऊपर रंगवार है, वो भी बहुत अच्छी जगह। उससे ऊपर भी कई डॉग हैं, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर रोड आनी चाहिए और भी चीजें होनी चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए। जैसे सैयद स्वालिया ने भी यहाँ कहा हमें कि जो यातायात का सिलसिला यहाँ तक है, यहाँ तो गाड़ियाँ आती हैं, मेटल रोड है, गवर्नमेंट ने ये सब किया है यहाँ पे, यहाँ तक तो मेटल रोड है माशाल्लाह। तो यहाँ से ऊपर आप चाहते हैं कि जो आपका जो है और भी बहकें हैं, जो सरोवाली तो सबसे पहली बहक हमें नजर आती है। इसके बाद जो है खड़ी वाटरफॉल है, और उसके बाद उसके चकपत है, और उसके बाद है चकपत भी, और इसके बाद रंगवार है, और इसके बाद है पटनी है, डिबरी है, गंगीनार है। गंगीनार तो नीचे है। जी हाँ, रोड तो यहाँ तक है माशाल्लाह। आप चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर ऊपरी इलाकों के लिए जो भी और भी सेहत अफजा मकाम है यहाँ पे हमारे मोनबल के वादी में, और वहाँ पे जो है लोग आए। अभी पता नहीं, एक्सप्लोर नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है ये, अभी अनट्रैवल्ड एरिया है। यहाँ पे लोगों को मालूम नहीं है इस बारे में, इस खूबसूरत इलाके के बारे में मालूम नहीं है। और क्या चाहते इन लोगों के बारे में लोगों को हमारे नाज़रीन को बताएं कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये क्यों यहाँ डोको में रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, मकसद क्या है इनकी जिंदगी का, ये आप बताएं हमारे। इनकी जिंदगी का मकसद है ये यहाँ आते हैं, अपने माल मवेशी को चराते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीस है, अमन है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनके माल मवेशी अच्छे से रहते हैं, उनको कोई कमी नहीं होती। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, इतना दूर सफर करके आते हैं ताकि वो अमन चाहे। और अब मैं टूरिस्ट से भी यही कहना चाहूँ कि आप भी इस जगह पर आए और इस जगह को ज्यादा मशहूर होने दें। ओके, हमारे साथ बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी उल्फत हमीद, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी इस इलाके के बारे में, और इन्होंने बातचीत हमारे साथ करी इस सरोवाली के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।